of management accounting 1. Okay, how many units are there, what is the weightage of particular unit, and now we are going to start one by one units. So first unit is introduction of management accounting, and second point is what, opportunity cost aspect. So you can say that there are two parts in first unit. First unit is divided into two parts and equal weightage of both. First part of this unit is dealing with the management accounting theory aspect. Okay, and another part is opportunity cost approach. Clear? In overview, I have explained the crux of what is the meaning of opportunity cost. Now, we are starting this, and after completing this, we will move on to this point. First, management accounting. What do you mean by management accounting? Before understanding the management accounting, we have to understand why it came. हमको पता होना चाहिए कोई अगर न्यू कॉन्सेप्ट या तो फिर मॉडर्न कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में आता है तो उसके पीछे क्रक्स क्या है, क्यों नीड, क्या नीड थी, उसकी वजह से आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग की स्ट्रीम डेवलप करनी पड़ी अकाउंटिंग में. व्हाट इज अवर ट्रेडिशनल अप्रोच? Traditional approach of accounting is stating only that we have to deal with the financial aspect of accounting. That means we have to record our information. We have to deal with the presentation of information in a particular described format. Okay, so it is known as financial accounting. Okay, so you can say that what is the crux of financial accounting? Crux of financial accounting is that you have to present your accounting information in a prescribed format. That means you can say that your day-to-day business operations are on papers, on annual reports. Clear? Okay, this is the crux of financial accounting. You have to present your financial information in a particular format, and that particular format are known as balance sheet, P&L account, and another statements which are mandatory as well as voluntary. You can say value added statement, your CFR concept is here. Okay, and after that mandatory concepts are this one. हमको कंपनी में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना होता है, वो वॉलंटरी बेसिस पर है. हर कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना कंपलसरी नहीं होता है. जबकि P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट आपको बनाना है, वो क्या है, वो सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है. बट फ्रॉम दिस यू कैन नॉट टेक डिसीजन. आप कंपनी में कोई फॉर्मुलेट करनी है पॉलिसी, तो आप डिसीजन कब लेंगे, जब आप आपके डेटा को इंटरप्रीट करोगे. बट ये इंटरप्रेट करने का काम किसका है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का. सो फ्रॉम हियर, फ्रॉम दिस पॉइंट द न्यू कॉन्सेप्ट इज केम मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बिकॉज फाइनेंशियल अकाउंटिंग जस्ट प्रेजेंट द डेटा, and which is the past data. It is not presenting the present data at a various level, because in a large scale companies, production companies, they are using the various capacity levels. Okay, and from that they have to deal with the various management policies. So फाइनेंशियल अकाउंटिंग उनको हेल्प नहीं करेगा कभी, वो सिर्फ आपको डेटा प्रेजेंट कर देगा. आपको क्या करना है, आपको ये सारी इंफॉर्मेशन पर से इंटरप्रेट करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है, और आपको डिसीजन लेना है. Clear? And that is the part of management accounting. So this is the point when financial accounting is not that much important in comparison of management accounting. Clear? So now we are going to deal with the management accounting. मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैसे आया वो हमने अब देखा. अब हम स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग? According to Robert Anthony,
He has given the simplest definition of management accounting. It is a use of accounting information and it is used by management. Clear? बस इतनी सी शॉर्ट डेफिनेशन है. मैनेजमेंट अकाउंटिंग मीन्स यूज ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजमेंट. यानी कि आपके जो अकाउंटिंग डेटा है उनका यूज कौन करेगा? मैनेजमेंट करेगा. क्यों? बिकॉज आपको रिपोर्ट सबमिट करना होता है टॉप मैनेजमेंट को. क्लियर? इट्स अ सिंपलेस्ट डेफिनेशन, बट अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर जे बेटी हैज expanded the definition of management accounting. He is saying that management accounting is referring accounting system, methods and techniques. What he has said? He is saying that वो अकाउंटिंग की ही सिस्टम है, मेथड्स है, टेक्निक्स है, बट विच आर कपल्ड विथ एबिलिटी, knowledge and assist management for main target, maximize profit of the company and minimize losses. Okay, प्रोफेसर रॉबर्ट एंथनी ने क्या किया? एक सिंपलेस्ट डेफिनेशन दे दी कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज दिस, सिंपल वर्ड. बट जे बेटी ने क्या किया? प्रोफेसर जे बेटी ने आपको पूरा क्रक्स निकाल के दिया कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को आपको क्या करना है, उन टूल्स, उन टेक्निक्स को आपको फॉलो करना है, बट उसके लिए आपको क्या होना चाहिए? एक पर्टिकुलर एबिलिटी होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, और आप मैनेजमेंट को वो रिपोर्ट सबमिट करो तो वो डिसीजन ले सके मैक्सिमाइज करने के लिए प्रॉफिट और मिनिमम लॉस. क्लियर? मैंने आपको ओवरव्यू दिया जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, तभी बताया था कि अभी तक आपने बीकॉम में भी कुछ मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, तो क्या फिर मैनेजमेंट को वापस हमको एमकॉम में रिपीट करना है? नो. Here we have to expand our knowledge, here we have to expand our ability, we have to make crux of management accounting. हमको क्या करना है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसी मेकिंग डिसीजन के रिगार्डिंग हमको पॉइंट ऑफ व्यू करना है. हम कैसे कंपनी के परफॉर्मेंस को कंट्रोल कर सकेंगे वो हमें यहाँ पर देखना है. क्लियर? यहाँ पर सिर्फ एग्जाम्पल करके हमको रख नहीं देना है, हमको एग्जाम्पल पर से कैसे कंक्लूजन प्रिपेयर करना है, कैसे कंपनी को रिपोर्ट प्रिपेयर करना होगा, वो सारे डिसीजन हमको यहाँ पर लेने होंगे. ओके, सो दिस इज द टू डेफिनेशन. फर्स्ट इज सिंपल एंड सेकंड वन इज लेंथी. नाउ फ्रॉम दिस डेफिनेशन वन थिंग इज क्लियर, देयर आर सम रिपीटेड पॉइंट्स. Which first accounting information, accounting tools and techniques, आपका जो मेन टारगेट है वो मैक्सिमाइज प्रॉफिट करने का है. क्लियर? तो ये जो सारे रिपीटेशन वाले थिंग है वो सारी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है. तो अब हम देखेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी है. द फर्स्ट वन इज दैट इट इज यूजिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. कुछ नया डेवलप नहीं कर रहा है. क्लियर? फाइनेंशियल अकाउंटिंग कुछ नया डेवलप कर रहा है. वो क्या कर रहा है? बिजनेस के जितने भी ट्रांजैक्शन है उसको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से अरेंज कर रहा है. क्लियर? और जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या कर रहा है? वो उस इंफॉर्मेशन के जो इंफॉर्मेशन यूज है उसको खाली यूज करके एक रिपोर्ट बना रहा है. क्लियर? नंबर 2, यूज किसके लिए कर रहा है? फॉर decision making purpose. Clear? Number 3, I can compare my data. Here actual performance of the company can be compared. How? एक सिंपलेस्ट एग्जाम्पल, अकाउंटिंग का नहीं दे रही हूँ मैं, सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ जो आप यहाँ पर कंसर्न कर सकोगे.
आपके पास आपका रिजल्ट है, आपके पिछले क्लास का रिजल्ट है, आपके जो रिसेंटली क्लोज है उस क्लास का रिजल्ट है, तो आप क्या करोगे, आपके पास अगर इंफॉर्मेशन है आप कंपेयर करोगे और उसके कंपैरिजन पर से आपका जो नेक्स्ट स्टैंडर्ड है उसके रिजल्ट को इम्प्रूव करना चाहोगे, या तो फिर आपके जो स्टडिंग हैबिट है टोटली हैबिट्स को आप चेंज करोगे। क्लियर? तो कब करोगे, जब आप कंपैरिजन करोगे। तो कंपेयर करना है आपको आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस किसके लिए, फॉर द फ्यूचर। क्लियर? okay, so these all are the characteristics and meaning of management accounting. This is the first and the foremost important question of unit number 1, part number A, management accounting. Okay, meaning is clear, characteristics are clear. Now we are moving on the another point. What are the tools and techniques of management accounting? What are the limitation of management accounting? It is clear that each coin have a two side. यहाँ पर मैंने सब पॉजिटिव एस्पेक्ट आपको शो किए। अब हम लिमिटेशन में देखेंगे कि क्या कुछ गलतियां भी हो सकती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की लिमिटेशन नहीं होती, जो फ्यूचर जो मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स आई है कंपैरिजन के लिए वो नहीं डेवलप होगी। ओके, सो advantages and limitation both are important. Okay, so now we are moving on the techniques and limitation